بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ایک عزیز دوست نے آج ایک کلپ بھیجی اور کہا کہ ذرا اس کو غور سے سنیں، کچھ اعتراضات ہیں اس کے اندر، اور اگر آپ کو معلوم ہو تو ان کا جواب عنایت فرما دیں۔ ہم یہ سمجھے شاید کوئی نئے اعتراضات ہوں گے، کیونکہ آج کل جو نسل نو ہے ان کے ذہنوں میں الحاد اور بے دینی اس درجہ بیٹھی ہوئی ہے کہ نت نئے اعتراضات اسلام پر وہ کرتے رہتے ہیں۔ خیر، ہم نے وہ ویڈیو کلپ کھولا اور دیکھا تو اعتراض کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، کوئی چھوٹا آدمی بھی نہیں تھا، بلکہ موجودہ علماء بریلی میں سے مشہور عالم مولانا سلمان اظہری صاحب تھے، جنہوں نے کچھ اعتراضات علماء دیوبند پر کیے تھے۔ سب سے پہلے آپ ان کی وہ جو کلپ ہے وہ مختصر سی اس کو سماعت کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ گفتگو ہم اس کے اوپر کریں گے۔ اور پھر دیوبندی فتنہ ایک اور۔ یہاں پر میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہے، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو۔ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئی اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئیں، اللہ کی شان میں لکھی گئیں، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئیں، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئیں کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی؟ پھر ایک کتاب نے عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تقسیم، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا۔
शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है? यानी बराबर हो गए। शैतान को जितना इल्म है उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरे अजीजों, क्या ये बातें दिल पर नहीं लगती मुसलमानों के? ये इबारतें आई, किताबों में लिखी गई, और बड़ा फितना यहाँ से भी हुआ मौलवी कासिम नानोतवी साहब की किताब से, कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिलफर्ज बाद ज़माने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है, अगर हो गया, अगर मगर की बात ही छोड़ो, जब हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया, फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। आप किताब में ये नई बात लिखने की क्यों जरूरत पेश की? आपको क्यों जरूरत पेश आई कि अगर आपके जमाने में भी कोई नबी आएगा तो हुजूर के खातमुन नबीयीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा? तो आपकी इस बात से पता नहीं कितने मोहल्लों में कहाँ कोई नबी होने का ऐलान कर देगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये किताबें पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक खलबली मचा चुकी थी, कोहराम बपा था, तनाज़ात में घिर गए। कादियानी अपने नबी होने का ऐलान कर रहा है, इधर एक नेचरी फिरका है अलीगढ़ से जो कुरान के मौजज़ात का इनकार, हिस्सियात को सिर्फ मानने वाला, नेचर को सिर्फ मानने वाला और मुग़ीबात को नहीं तस्लीम करने वाला, और एक तरफ अज़मत रसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये सारे जुमले आ रहे। चलो 100 साल का अरसा गुजर गया, आज भी मैं दावत देता हूँ, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरी ये दावत कबूल करें उलमाए देवबंद या जो भी, मैं आपसे इत्तेहाद कर लूँगा, सीने से सीना लगा लूँ, लेकिन सिर्फ ये बातों से तुम इनकार कर दो और कहो कि वही इश्क़ रिसालत हमारे अंदर है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ में था। हज़रत शेखुल ये क्लिप है मुख्तसर सी जो उलमाए देवबंद पर एतराज़ात के सिलसिले में है। हम तो ये समझ रहे थे शायद कि कोई नए एतराज़ात होंगे और ऐसे एतराज़ात के जवाब देने की ज़रूरत भी होती है। ये तकरीबन 100 साल पुराने एतराज़ात हैं जो मौलाना सलमान अज़हरी साहब ने उस वक्त आकर के उठाए। बड़े ताज्जुब की बात है और अफसोस की बात है कि इतना बड़ा आलिम, अपने आप को इश्क़ नबी का दावेदार कहने वाला और अपने आप को बहुत सुलह पसंद आलिम मानने वाला, उसको इतनी सी बात समझ में नहीं आती। अरे अब आप जवाब मांग रहे हो, 100 साल पहले से ही इन एतराज़ात के जवाबात दिए जा चुके हैं, लेकिन दिमाग के अंदर जो गंदगी होती है और दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है उसको अगर बाहर निकालोगे तो समझ में आएगा कुछ। ये दिमाग में गंदगी जो बिठा रखी है, जब तक ये गंदगी बाहर नहीं निकलेगी इन एतराज़ात के जवाबात समझ में नहीं आएंगे। बड़े आलिम हो लेकिन इतनी खयानत, ये तो एक राह चलते और लाउबाली किस्म के आलिमों का तर्ज अंदाज होता है कि आपने एक या दो लाइन उठा ली और बस उसको पेश कर दिया सामने। मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहाँ लिखा है कि ऐसा इल्म लिखा, लेकिन उससे पहले की जो 2 लाइनें हैं कम से कम उनको पढ़ लेते, उनको भी आवाम के सामने रख देते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन नहीं, दिमाग की जो गंदगी है, दिमाग के अंदर जो खबासत भरी हुई है, वो आपको मजबूर करती है इस बात पर कि सिर्फ आप वो लाइन उठाएंगे जिस पर लेकर के आप एतराज़ात कर सकते हैं। अगर पूरा मजमून आपने उठा लिया तो पूरा मजमून लेकर के अगर आप अपनी आवाम के सामने बयान करेंगे, आपके ऊपर जूते बरसेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और आप उलमाए देवबंद को चैलेंज की बात करते हैं, आपको हम खुद इस बात का चैलेंज करते हैं कि आप किसी उलमाए देवबंद से मुनाजरा ना करें, आप इस मजमून को मुकम्मल तौर पर बयान करें किसी के भी सामने। उलमाए देवबंद को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो मज़ामीन किताबों से उठाए हैं, जो लाइनें किताबों से उठाई हैं, उनकी चंद लाइनें पहले और चंद लाइनें बाद की आप अपनी आवाम को सुनाएं, आवाम खुद फैसला करेगी कि ये इबारतें काबिल एतराज़ हैं या नहीं हैं। लेकिन ये दिमाग की जो गंदगी है, दिमाग का जो
दिवालियापन तुम्हारा हो चुका है। ये किसी भी हक बात को सुनने पर, किसी भी हक बात को मानने पर तुम्हें खड़ा कर ही नहीं सकता। कहने को बड़े आलिम हो, लेकिन शर्म की बात है, गैरत की बात है कि जो तलबीस छोटे आलिम लोग करते हैं और जिनका मकसद फितना और फसाद होता है, वो लोग, अरे आपने एतराज़ात तो 100 साल पहले वाले उठाए, लेकिन जवाब 100 साल से आपको ताज्जुब है कि आपको 100 साल पहले की किताबों में एतराज़ तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनके जवाब आपको नहीं मिले, या आपको जवाब पढ़ने को मिला ही नहीं। आप उलमाए देवबंद की बात ना करें, उलमाए देवबंद के तो पैर के धूल के बराबर भी तुम जैसे नहीं हो सकते। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब बदायूनी, जो किसी ज़माने में तुम्हारे बहुत बड़े इमाम रहे हैं, क्या तुमने उनकी किताब इंकिशाफ हक नहीं पढ़ी है? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके बताना, क्या उन्होंने जो जवाबात दिए हैं उन जवाबात से तुम मुतमईन नहीं हो सके? ये जो लोगों को धोखा देने का मसला है, लोगों को जो बेवकूफ़ बनाते हो, जो उल्लू बनाते हो, अपने दिमाग की गंदगी जो आवाम के दिमागों में भर रहे हो, इससे उम्मत का, कौम का भला होने वाला नहीं है। कब तक इस गंदगी के अंदर घुसे रहोगे? कब तक इन इख्तिलाफात को हवा देते रहोगे? एक नहीं हज़ारों मरतबा तुम्हारे सामने इन इबारतों की वजाहत आ चुकी है, लेकिन नई दिमाग की जो गंदगी है वो अपनी जगह तुम्हारी बरकरार है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तुम्हें देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ हर हालत में बाकी रहना है, चूँकि तुम्हारी रोटी इससे चलती। अगर तुमने ये इख्तिलाफ ख़त्म कर दिया, तुमने आवाम को हकीकत बतला दी, तो तुम्हारी रोज़ी रोटी नहीं चल पाएगी। जिन उलमाए अरब ने इन इबारतों को लेकर उलमाए देवबंद पर एतराज़ात किए थे, तुम आज जानते हो उन उलमाए अरब की कैफियत क्या है। आज भी उलमाए अरब उलमाए देवबंद की इतनी ताज़ीम व तौक़ीर करते हैं, तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम अपने मसलक को जा कर के सऊदिया अरबिया में बयान भी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए देवबंद सिर्फ बयान ही नहीं, बबांगे दुहल उलमाए देवबंद का मसलक वहाँ पर चलता है। और वो लोग जो किसी ज़माने में तुम्हारे धोखे में आ गए थे, सारे लोग इस धोखे से निकल चुके हैं, सब जान चुके हैं उलमाए देवबंद की हकीकत क्या है और उलमाए देवबंद का इश्क़ नबी किस दर्जे का है। खुदारा अब इस गंदगी से बाहर आ जाओ, उम्मत के हाल पर ज़रा रहम खाओ। ये उम्मत इल्हाद और बेदीनी के अंदर जा रही है। तुम्हें शर्म गैरत नहीं आती इस बात की कि आज भी तुम इस इख्तिलाफ के अंदर पड़े हुए हो। अब इन एतराज़ात के क्या जवाब दिए जाएँ? ज़ाहिर बात है, जिन साहब ने मेरे पास ये भेजी थी, कोई जवाब देना मैंने मुनासिब भी नहीं समझा। चंद किताबों के नाम थे, उन किताबों के नाम ही उनको इरसाल कर दिए। आप आलिम हो, आपको तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि किस किताब के अंदर इन इबारतों के जवाबात दिए गए हैं। और ऐसा नहीं कि तुमने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा भी होगा। ज़रा सच्चे दिल से और इस गंदगी को बाहर निकाल कर, अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा उन एतराज़ात के जवाबात पढ़ लेना। आपके सामने इंशाअल्लाह हक़ बिल्कुल ज़ाहिर हो जाएगा।